Good morning, students. As you know that our voice is going on, and it is a very important topics for all standard students. Even also, it's important for the competitive examination. You have already studied about the voice, but now I am going to tell you a short and important tricks how you can easily change a sentence active voice into passive voice. As I told you, you can write or you can express your point of view by 2 or 3 ways or type. आप अपने किसी भी एक वाक्य को 2 अथवा 3 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, बट देर इज नो चेंजिंग इन मीनिंग्स. Same words will come when you will change a sentence into another sentence. सेम वर्ड ही आएंगे, लेकिन उसका मीनिंग भी नहीं बदलेगा, उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा. आपको पहले ही पता होना चाहिए कि ये वॉइस जो है इट इज आल्सो पार्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. What is transformation? A transformation is that which change a sentence into another sentence by one grammatical method into another grammatical method but does not change its meaning. ऐसा सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन वो होता है, इट इज नोन एज ऑल्सो इन हिंदी रूपांतरण. रूप में अंतर हो जाए लेकिन मीनिंग्स में कोई अंतर ना हो. फॉर एग्जाम्पल्स, राम किल्ड रावण. ओके, राम किल्ड रावण. व्हेन यू विल चेंज इट at that time, there will be only changing the words. Here, as you are watching, there is a Ram. Ram is a doer, and doer is also known as a subject. Who is the doer? Who killed Ravan? Ram killed Ravan. It means Ram is a doer. Doer is also known as a subject. It means Ram is a subject. And what is his action means Ram's action? Ram's action is a killing. And action is also known as a verb. It means this one is a verb. And Ravan, it's known as a subject. What is subject? जिसका प्रभाव क्रिया पर पड़े, जिसका प्रभाव क्रिया पर पड़े, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट. तो मारा गया, रावण मारा गया, इट मीन्स ही इज ऑब्जेक्ट. Now we can write this sentence in this way. Ravan was killed by Ram. There is any changing in the meanings? No. There is no changing in the meanings. There is only change of words. Means they are changing their place. Here subject is in place of object and object in place of
subject, and verb is laying at the same place. सेंटेंस के सेंस में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। राम ने रावण को मारा और यहां पर रावण राम के द्वारा मारा गया। देयर इज ओनली वर्ड्स, एडिटिंग वर्ड्स, दैट इज बाय, बट देयर इज नो चेंजिंग इन मीनिंग्स. So you can say in active voice doer is important. It always comes in starting of the sentence in active voice. Doer means subject. But in passive voice object is important. You can say पैसिव वॉइस एकदम सेल्फिश होते हैं, इनको अपने काम से मतलब होता है, कौन किया उससे कोई मतलब नहीं होता है. आपने बहुत सारे सेंटेंसेस सुने होंगे. सपोज दैट इन योर क्लासरूम व्हेन प्रिंसिपल मैम केम एट दैट टाइम he or she only asked what? English was taught. Who taught? That's not important. काम हुआ कि नहीं उससे मतलब होता है, कौन किया उससे मतलब नहीं है. In passive voice that is important. As I told you, it is a parts of transformation, means there is no changing in meanings, same meanings. Now we are going to learn a simple and tricky way how to change a active voice into passive voice. Okay, let's carry on. Firstly, you have already studied the tense, and tense is important. You can say tense is the heart of the English. कोई भी चीज पढ़ने जा रहे हैं, there is requirement of tense. Firstly, you have a knowledge of a tense. Okay, suppose that when we are going to start our continuous tense. In continuous, and also one more things, to change the active voice into passive voice, there is required of the verb form. As you are watching on screen, there is a killed. It means it is a past form of the verb, past form. Killed is a past form of the verb. And what is killed here? It is a participle form. This one is a participle form. And there are three forms of the verb: present, past, and participle. Actually, there are five forms of the verb, but maximum we will learn there are only three forms of the verb. It is also known as V1, V2, and V3. V1 is a present form, V2 is a past form, and participle form is a V3, and V4 and V5. V4 means when you add in V1 ing, that is known as the V4. जब आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing जोड़ते हो तो दैट इज V4. एंड व्हाट इज फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब? व्हेन यू ऐड SRES विथ वर्ब. जब आप वर्ब में SRES जोड़ते हो तो दैट इज नोन एज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, as you watch that, there is also changing in the verb form, and in passive voice we always use the participle form in passive voice. But in active voice there may be the present form,
there may be the past form, there may be the participle form. But in passive voice, you have to always use the participle form of the verb. Okay, let's carry on. As we were discussing about the continuous tense. In continuous, as you know that there are three kinds of tense: present, past and future. And each tense has a continuous form: present continuous, past continuous and future continuous. Okay, let's carry on. In present, there is use of is, am, are. In past, there is a was and were. In future, there is a will be and shall be. When you change a continuous tenses, active voice, into passive voice, you have to use only being words with both. When you will change a active voice into passive voice, you have to only include being. At that time there will be is being, am being and are being. And in past tense there will be was being and were being. But in future, one more thing. In active voice, there are uses 12 tenses. But in passive voice, we use only 8 tenses. There are 4 tenses which are not applied, which are not used in passive voice. Which are that? That are present perfect continuous, past perfect continuous, future continuous and future perfect continuous. These 4 tenses are not applied in passive voice. It means this one is a future continuous. This will not be changed into passive voice. It means there are only 2 continuous, present continuous and past continuous. You have to include being with these verbs when you want to change into passive voice. Okay, let's carry on examples. Sheila is watching TV. Okay, Sheila is watching TV. Okay, let's point out. As I told you, structure, that is very important. In active voice, there will be subject, after that helping verb, after that verb, after that object, after that etc. But in passive voice, object will come in place of subject. As I told you, both two change their places. Subject will go in place of object and object will come in place of subject. It means in passive voice there will be object. After that, I told you there are only
two changing, only subject and object. Okay, let's carry on. Watch. Helping verb, same place. Verb, it means main verb, same place. But in active voice there may be the V1, V2, V3, V4 and V5. But in passive voice we have to use only V3. After that, by subject. As I told you, no, we have to apply by before the subject when it will stand or it will take the place of object. After that, etc. That's all. Okay, let's mark out. Sheila. Sheila is a doer. Doer is known as a subject, and it's your helping verb. This one is your verb, and it's what? Object. When you will change into passive voice, at that time, object will come in place of subject. There will be TV. Okay, what I told? I told that if there is use of in active voice, if there is use of is or am or are or was or were, you have to add being only with a is, am or was, were. At that time there will be is being, TB is singular, is used with a singular subject, am is especially with a I. इनका परमानेंट रिलेशन हो गया है, ये कभी अलग नहीं हो सकते. आपने एडवर्टाइज देखा होगा ना, ये फेविकोल का जोड़ा है, अलग होने वाला नहीं. तो सेम ऐसे ही होते हैं. ये आई कभी एम से अलग नहीं होता. आर इज यूज विथ अ प्लूरल सब्जेक्ट. इन पास्ट टेंस वाज विथ अ सिंगुलर एंड वर विथ अ प्लूरल. So here TB is a singular, it means is, TB is. We have to add being in a passive voice. TB is being. Right now we have to use the third form of the verb, means participle form of the verb. There will be being. TB is being watched. It's a participle form of the verb. TB is being watched. Before subject we have to use by Sheila. तो हमने क्या देखा? सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की आपस में चेंजिंग हो रही है. न तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है, न तो मेन वर्ब का सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं. ऐसे सिंपली आप जो भी कंटिन्यूअस हो उसको चेंज कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अभी तो हमने देखा कि इफ देयर इज अ कंटिन्यूअस एट दैट टाइम हाउ वी चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. ओके, लेट्स कैरी ऑन सेम प्रोसेस विद द परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस में आपको पता है कि परफेक्ट सबके होते हैं. देयर इज प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट. इन परफेक्ट, इन प्रेजेंट परफेक्ट वी यूज हैज एंड हैव. इन पास्ट परफेक्ट वी यूज had. In future perfect we use will, have and shall have. In perfect and in perfect पहले से ही बता रहा है परफेक्ट जो एकदम कंप्लीट हो. We use the V3, same things, V3
V3. When we change perfect into passive voice, जब हम परफेक्ट को एकदम शॉर्ट ट्रिक है, परफेक्ट को क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे जब ये सब वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब, हैज आ गया, हैड हो गया, विल हैव हो गया, शैल हैव हो गया। तो हमको क्या करना है, पैसिव वॉइस में सबके साथ बीन जोड़ देना है। वी हैव टू ऐड बीन विथ ईच। एट दैट टाइम देयर विल बी, क्या हो जाएगा, देयर विल बी हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, will have been and shall have been. Or as I told you, we have to use the participle form of the verb in a passive voice. तो with V3 क्या हो जाएगा, यहां भी हमने यूज किया V3, सेम वही V3, बट पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, हैज बीन प्लस V3, हैव बीन प्लस V3। अब ये तो आपको पता ही होगा, यू हैव ऑलरेडी नॉलेज अबाउट दिस वन। इफ दैट इज सिंगुलर वी यूज हैज, इफ दैट इज प्लूरल वी यूज हैव। ये तो भाई अकेला है, लोनली, लोनली, ये किसी के बिन लोनली था तो हमने इसको ऐड कर दिया, ट्वाइस कर दिया, जोड़ दिया, किसके साथ, बीन का। इसी को पुकार रहा था, तेरे बिन जिया जाए ना, तो हमने हैड अकेला था, इसको बीन के साथ जोड़ दिया, इसको जिला दिया, ये ऑलरेडी इंगेज है पहले से ही है। विल हैव, तो ये इन्होंने अपना बच्चा समझ के अडॉप्ट कर लिया। ओके, लेट्स कैरी ऑन द फ्यू एग्जांपल्स। दे have informed me for my work. Okay, they have informed me for my works. Okay, you are watching here, uses of has, same process, have। अब आप यूज कर सकते हो, हैड भी यूज कर सकते हो, और विल हैव भी यूज कर सकते हो। दैट्स डिपेंड ऑन यू। बस आपको ये नोटिस करना है कि हैज, हैव, हैड, इसमें भी देखो हैव आया है, हैज, हैव, हैड आ जाए तो उसके साथ बीन जोड़ना है। तो लेट्स मार्क आउट, there is a doer, करता है, doer is known as a subject, it's a helping verb. What is the action, verb, and this is object and it's etc etc, बचा खुचा। When we will change into passive voice at that time, there will be, firstly, object will come in place of subject and subject will go in place of object. हमेशा ध्यान देना, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे से रिप्लेस होते हैं, इफ दैट इज अ प्रोनाउन, अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह कोई प्रोनाउन है तो आपको जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करना पड़ेगा उस प्रोनाउन का, और जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाएगा उस समय आपको सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करना पड़ेगा। ओके, कैसे? ओके, लेट्स वॉच। ही हैज गिवन मी, मी इज ऑब्जेक्ट, व्हेन इट विल कम इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एट दैट टाइम, व्हाट इज द सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द मी? Me's subjective form is a I. There is I.
आफ्टर दैट हमने बोला ना, इफ देयर इज गिवन हैज और हैव, वी हैव टू यूज द बीन। तो आई हैव बीन, ओके। इन फॉर्म्स इज ऑलरेडी गिवन द पार्टिसिपल फॉर्म और द V3 फॉर्म, हमको चेंज नहीं करना है। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड, अब ये सब्जेक्ट विल गो इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां पर दे सब्जेक्टिव फॉर्म है, व्हेन इट विल गो इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एट दैट टाइम वी हैव टू यूज द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द दे। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द दे? दिस ऑब्जेक्टिव फॉर्म इज अ देम। तो क्या हो जाएगा? बाई देम। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाई देम फॉर व्हाट? फॉर माई वर्क। ओके, तो आपने एकदम सिंपल सा फंडा देखा, सिंपल वे, सिंपल ट्रिक्स, कैसे हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस को चेंज करेंगे, कैसे परफेक्ट को चेंज करेंगे। ओनली वन थिंग्स, दैट इज द सिंपल्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल को कैसे पढ़ेंगे वो भी हम वॉच कर लेते हैं बस 2 मिनट्स में। ओके, अब एक ही बचा है, कैसे सिंपल को कन्वर्ट करेंगे। दैट मे बी द सिंपल प्रेजेंट और द सिंपल पास्ट और द सिंपल फ्यूचर। देर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन अ पॉजिटिव सेंटेंस। ये प्रेजेंट और पास्ट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है इफ दैट इज द पॉजिटिव सेंटेंस। अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस है, वी यूज ओनली व्हाट्स? V1। इन पास्ट वी यूज V2। इन सिंपल प्रेजेंट वी यूज V1 if that is the positive sentence or the affirmative sentence. In past we use V2. If that is the negative or interrogative, अगर निगेटिव दिया होगा तो वहां पर क्या आएगा? इफ दैट इज द निगेटिव और इंट्रोगेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव जैसे ही होगा वहां पर हम यूज करते हैं क्या? डू और डज। हेल्पिंग वर्ब तो एक ही होती है, सिर्फ डू ही होती है। तो आपको पहले से पता है कि इन सिंपल प्रेजेंट इफ द सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर एट दैट टाइम वी यूज, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देते हैं। तो इसमें क्या है? डू तो था ही, हमने सिर्फ क्या किया, अगर अब आप ये डू डज जान लो, डू इज यूज विथ प्लूरल सब्जेक्ट, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी यूज डज। तो हमने डू में ईएस जोड़ दिया तो सिंगुलर के लिए हो गया। और इसमें क्या होता है? इफ द डिड यूज करते हैं, जब डिड यूज करेंगे तो ये जो वर्ब का V2 है यहां पर डिड प्लस V1 हो जाएगा। और ये जब पॉजिटिव सेंटेंस रहता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम यस या ईएस जोड़ते हैं ना, लेकिन जैसे ही वहां पर इंट्रोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस होगा तो हम यस या ईएस नहीं जोड़ेंगे, ओनली वी यूज देयर V1। और फ्यूचर में देयर यूज ऑफ विल एंड शैल। बहुत सारे आपने सेंटेंसेस सुना होगा, आई विल किल यू। फर्स्टली सिंपली क्या होता है? विथ आई एंड वी यूज शैल। आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं, और जितने भी अदर होते हैं अदर सबके साथ विल यूज करते हैं। अभी तक आपने पढ़ा या तो एक ही वर्ब होती थी हेल्पिंग वर्ब दैट इज यूज फॉर द सिंगुलर एंड प्लूरल, या तो अगर डबल होती थी तो वन फॉर द सिंगुलर एंड वन फॉर द प्लूरल। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है इन फ्यूचर, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला कुछ पता नहीं है। अभी तो हमको पता रहता है
भविष्य में आप पहचान भी नहीं पाओगे सी इज अ मेल और ही इज अ मेल। कंफ्यूजन, देयर इज अ डाउट, सेम ऐसे फ्यूचर में यहां भी डाउट है, पहले से ही है। तो यहां पर देखिए ऐसा नहीं है कि ये प्लूरल के लिए आया है। अगर ये प्लूरल के लिए होता तो प्लूरल में देयर इज आल्सो यू, देयर इज आल्सो दे, देयर इज आल्सो मेनी थिंग्स लाइक अ बॉयज, दिस वन इज आल्सो प्लूरल। बट कोई भी आ जाए आई और वी को छोड़ करके, वी ऑलवेज यूज विल विथ हिम। अब जब हम इसको क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, व्हेन वी चेंज दिस सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, हमको क्या करना है, ये डू डज अगर आएगा तो वहां पर क्या आएगा, देयर विल बी इज, आर, एम, आर। आपको बताया इन पैसिव वॉइस वी ऑलवेज यूज V3 आर द पार्टिसिपल फॉर्म। अभी तक आपने जब कंटिन्यूअस पढ़ा था तो कंटिन्यूअस में आपने क्या पढ़ा था, इज एम आर के साथ V4 फॉर्म। V4 बोले तो V1 प्लस ING। बट इफ देर इज गिवन V3 मीन्स पार्टिसिपल फॉर्म, इट मीन्स you can easily recognize that is the passive voice। तो is am are के साथ V4 ना लग करके V3 लगा, इट मीन्स दैट इज पैसिव वॉइस। सेम वे जब V2 दिया हो या did प्लस V1 दिया हो, when we change into passive voice at that time there will be was, were प्लस V3। और इसमें क्या होगा, इसमें सबके साथ बी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, शैल का शैल बी, विल का विल बी। और इसमें भी हम क्या करते हैं, सबके साथ V1 यूज करते हैं, विल या शैल प्लस V1। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, विल बी और शैल बी प्लस क्या, V3। तो ये सेंटेंसेस आपने देखे कि कैसे एक एक्टिव वॉइस को सिंपल तरीके से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, लेट्स वॉच फ्यू एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, सी किक, सी किक्स the ball। okay, let's mark out, C is subject, kick is a verb and ball is a object। अभी हमने बताया ना कि if that is the positive, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस तो और सब्जेक्ट सिंगुलर है, C is a सिंगुलर, तो हम क्या करते हैं कि we add SRES with verb। यहां पर सब्जेक्ट सी था, सिंगुलर था, तो हमने किक के साथ एस जोड़ दिया, किक्स हो गया। अब जब चेंज करेंगे इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो बॉल पहले आ जाएगा, देयर विल बी द बॉल। अब हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में अगर है तो उसके साथ इज एम आर लगाएंगे। तो अभी ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट इज स्पेशली फॉर द सिंगुलर, आर विथ प्लूरल एंड एम के साथ आई। द बॉल सिंगुलर है, क्या हो जाएगा, इज, किक का किक्ड, और व्हेन इट विल गो इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हर, तो बाई हर हो जाएगा। सेम वे अगर ये पास्ट में आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो सिर्फ किक की जगह क्या आएगा, किक्ड, इट इज इन पास्ट टेंस, तो यहां पर इज की जगह क्या आ जाएगा, वाज। क्या हो जाएगा, द बॉल वाज किक्ड बाय हर। सेम वे अब यहां पर आपने पहले देखा विल या शैल के साथ V1 अगर आप यूज करते हो तो क्या हो जाएगा, सी विल बी। अब यहां एस नहीं लगेगा, यहां देख लेते हैं इसी एग्जाम्पल को।
सी विल किक, सी विल किक द बॉल। यहां पर हमने यस या यस नहीं यूज किया क्योंकि इट इज अ फ्यूचर टेंस, इन फ्यूचर देयर इज ओनली V1 फॉर्म। जब चेंज करेंगे इसको हम पैसिव वॉइस में तो क्या हो जाएगा, द बॉल, यहां पर विल की जगह क्या, विल बी, आगे किक्ड बाय हर। These are the according to the tenses. Only one thing is remaining, that is the modal auxiliaries. What is auxiliary? Auxiliary is the same as the helping verbs. It tells the work is going on, or the work has completed, or it will be going on, it will be go। काम हो रहा है कि हो गया है कि होगा। अब सिर्फ हमको करना क्या है, ऑक्सिलरी में ये चार्ट समझ लीजिए। अगर यहां पर ये एक्टिव वॉइस का है एंड दिस वन इज द पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में इफ देयर इज गिवन कैन, एंड वन मोर थिंग्स विथ ऑक्सिलरी वर्ब, that may be the primary or the modal auxiliary. With auxiliary verb we always use, with auxiliary verb we always use the V1। हमेशा हम auxiliary verb के साथ verb का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। कोई भी यूजेस हो, कोई भी यूज हम पढ़ते हैं तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो यहां पर कैन के साथ क्या आएगा, V1। पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं सबके साथ यू हैव टू ओनली यूज द बी। कैन प्लस बी प्लस, एज आई टोल्ड यू वी ऑलवेज यूज द V3 ऑफ द फॉर्म, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में V3 लगाते हैं तो यहां भी हमको V3 लगाना है। ओके, as we were discussing about the auxiliary verb, actually there are 24 auxiliary verb and these are divided into two parts, primary auxiliary verb and modal auxiliary verb. In primary there are 11, in modal there are 13। तो अगर ये जो मॉडल ऑक्सिलरी के थ्रू आते हैं, अगर ये वर्ब आई हैं, ये सब हेल्पिंग वर्ब, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब आई हैं, तो इनके साथ हमने आपको बताया, एज आई टोल्ड यू वी ऑलवेज यूज द V1 फॉर्म, बट व्हेन विल वी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इन पैसिव वॉइस वी हैव टू यूज ओनली बी। हमको सिर्फ क्या करना है, सबके साथ बी जोड़ना है। अगर वुड आएगा तो वुड बी, शुड आएगा तो शुड बी। एक्टिव वॉइस में वुड आएगा तो पैसिव वॉइस में वुड बी, एक्टिव वॉइस में शुड आएगा तो पैसिव वॉइस में शुड बी, एक्टिव वॉइस में मे आएगा तो पैसिव वॉइस में मे बी, एक्टिव वॉइस में माइट आएगा तो पैसिव वॉइस में माइट बी, एक्टिव वॉइस में कैन आया तो कैन बी, कुड आया तो कुड बी, यूज टू आया तो यूज टू बी, ऑट टू आया तो ऑट टू बी, डेयर टू आया तो डेयर टू बी, हैज टू आया तो हैज टू बी, हैव टू आया तो हैव टू बी, हैड टू आया तो हैड टू बी, मस्ट आया तो मस्ट बी यूज करेंगे इन पैसिव वॉइस। तो हमको इन सब के साथ क्या करना है, बी जोड़ देना है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, एज आई टोल्ड यू वी ऑलवेज यूज द पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब।
पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया है ही कैन प्ले फुटबॉल, he can play football. There is a given can. When we change it to passive voice at that time, passive voice में जैसे ही can करेंगे he is a subject, can is a auxiliary verb, play is a verb and football is a object. ऑब्जेक्ट यहां आएगा तो क्या हो जाएगा फुटबॉल। और वन मोर थिंग, इसमें कोई सिंगुलर से लेना देना नहीं है। देयर इज नो नीड टू सिंगुलर एंड प्लूरल। The subject may be singular or plural with every number. That means the singular number or the plural number. सबके साथ हम कैन है तो कैन ही यूज कर सकते हैं, कुड है तो कुड ही यूज कर सकते हैं। तो फुटबॉल कैन का कैन भी हो जाएगा और यहां पर प्लेड का V3 क्या होगा प्लेड बाई, यहां पर ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे हिम हो जाएगा। तो दीज आर द रूल्स ऑफ द वॉइस. I think you can easily understand using these tricks how to change active voice sentences into passive voice. इस आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गया होगा, यही उम्मीद करता हूं. इफ देर इज एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग यू मे कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स. दैट्स ऑल. थैंक यू.